Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our topic is mutation. Mutation is any change in the genetic material that changes the phenotype, or any change in the genetic material which causes disease is called as the mutation. जेनेटिक चेंज, जेनेटिक मटेरियल का चेंज जो फिनोटाइप को चेंज कर दे, जो डिजीज़ काज करे, हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं. और इसके अगेंस्ट अगर कोई जेनेटिक चेंज डिजीज़ नहीं काज करता, फिनोटाइप को चेंज नहीं करता, सो सच ए काइंड ऑफ genetic change is called as the polymorphism. So that's the main difference between the mutation and the polymorphism. कि mutation में जब कोई genetic change आती है तो उस genetic change की वजह से, change in the genetic material की वजह से disease काज होती है, जबकि phenotype में disease काज नहीं होती, phenotype वही की वही रहती है. और यानी दो different genetic makeup same phenotype काज करें, so we call this as a polymorphism. So genetic material चूँकि हायर लेवल पे क्रोमोसोम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सिंपल फॉर्म में वी कॉल द जेनेटिक मटेरियल एज द डीएनए, डीएनए के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अगर ये क्रोमोसोम की फॉर्म में है तो वी कॉल इट्स अ ब्रॉडर लेवल म्यूटेशन. और ब्रॉडर लेवल की म्यूटेशन दो किस्म की होती हैं, न्यूमेरिकल एब्रेशन एंड द फ्रैक्शनल क्रोमोसोम एब्रेशन. न्यूमेरिकल एबरेशन जैसे कि नेम से ऑब्वियस है, जिसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज़ अफेक्टेड. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अफेक्ट ना हो, कोई इंटरनल सेगमेंट अफेक्ट ना हो, बल्कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अफेक्ट हो, यानी या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर हो या लेस क्रोमोसोम नंबर हो. फॉर एग्जांपल ट्राइसोमी 21, जिसको हम जनरली डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं. तो वो पेशेंट जिनमें ट्राइसोमी 21 होती है, उनमें नॉर्मल इंडिविजुअल में तो क्रोमोसोम 21 की दो कॉपीज होती है, एक क्रोमोसोम 21 और एक उसका होमोलॉग. लेकिन ट्राइसोमी 21 पेशेंट में क्रोमोसोम 21 की तीन कापीज होती है, यानी एक एक्स्ट्रा नंबर होता है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ न्यूमेरिकल एबरेशन. इसी तरह टर्नर सिंड्रोम है. टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है. नॉर्मल फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं. टर्नर सिंड्रोम फीमेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी एक नंबर कम होता है. So such a kind of chromosomal aberration where the number of the chromosome is affected, we call it as the numerical aberration. The other one is the fractional aberration. Fraction means some segment, some part, some portion of the chromosome. If some portion of the chromosome is either deleted, inserted, translocated with some other chromosome, or inverted, इसको inversion बोलते हैं. So such a kind of chromosomal aberration is called as the fractional aberration. Second is the DNA level mutation. DNA level mutation DNA level mutation में obviously there is change in the nucleotide. ये nucleotide level mutation भी हम इनको बोलते हैं. And they involve addition of the nucleotide, deletion of the nucleotide, substitution of the nucleotide if one nucleotide is exchanged with another nucleotide, or one nucleotide is replaced by another nucleotide. So it may involve either a single nucleotide or it may involve a few nucleotides. So types of the chromosomal level, particularly the fractional chromosomal aberration. For example, this one is the normal chromosome. और इस नॉर्मल क्रोमोसोम में जो रेड पोर्शन नज़र आ रहा है, ये रेड पोर्शन बजाय सिंगल कॉपी होने के ये दो मरतबा रेप्लिकेट हो जाए. सो वी कॉल दिस एज डुप्लीकेशन. लेकिन ये फ्रैक्शनल क्रोमोसोमल एबरेशन है. वाई? बिकॉज कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं डुप्लीकेट हो रहा, बल्कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट है क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेट हो रहा है. Second is the deletion. If some part of the chromosome is deleted, for example, ये normal chromosome और इसमें ये segment delete हो जाए, so the chromosome will obviously will be shorter than the normal chromosome. और duplication में the chromosome will become longer than the normal chromosome. और translocation यानी जब दो different chromosomes आपस में genetic material को exchange करें. For example, ये chromosome ब्लू कलर का ये डिफरेंट है और ये रेड कलर क्रोमोसोम डिफरेंट है. तो इफ सम सेगमेंट ऑफ blue chromosome it transfers on the red chromosome, and some segment of the red chromosome it transfers back on the blue chromosome. यानी blue और red chromosome इनके some segment ये आपस में exchange हो जाए. This is because of the wrong homologous recombination. So
इसमें अगर आप देखें तो ये ब्लू क्रोमोसोम में कुछ पार्ट रेड क्रोमोसोम का आ गया और रेड क्रोमोसोम में कुछ पार्ट ब्लू क्रोमोसोम का आ गया. सो व्हेन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दे एक्सचेंज सेगमेंट विद ईच अदर, we call this type of chromosomal aberration as the translocation. Or inversion, if some segment of the chromosome it get invert. For example, एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें डिफरेंट रीजन्स को ए बी सी डी ई से डिजिग्नेट किया गया है. तो फॉर एग्जांपल ये जो सेगमेंट है सी डी ई, ये अगर इन्वर्ट हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा, सो इट विल बी लाइक ए बी ई डी सी. So such a type of the chromosomal fractional chromosomal aberration where certain segment of the chromosome it get invert. और अमूमन ये तब होता है जब क्रोमोसोम सेगमेंट इन्वर्ट होकर 180 पे रोटेट होकर दोबारा रीलाइगेट हो जाए. ये उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है इन्वर्जन में. फॉर एग्जांपल नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये इसके डिफरेंट रीजन्स हैं जो ए बी सी डिजिग्नेटेड हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल ये रीजन सी डी ई एफ ये 180 पे रोटेट होकर रीलाइगेट हो जाए, यानी इन्वर्ट होकर रीलाइगेट हो जाए, सो सच अ chromosomal change is called as inversion. Duplication, if some segment like for example A B C D E ये दो मरतबा replicate हो जाए, so we call this as the duplication. Translocation की for example दो different chromosomes हैं, एक chromosome के regions को A B C D से designate किया गया और दूसरे को 1 2 3 से designate किया गया. तो for example अगर ये some segment from region A to F ये 1 2 3 वाले क्रोमोसोम पे आ जाए और some segment of क्रोमोसोम जिसको 1 2 3 से डिजिग्नेट की गई ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे आ जाए. सच अ exchange of genetic material between the two non-homologous chromosomes is called as translocation. Or deletion, for example some segment for example C D E F ये remove हो जाए from the normal chromosome, we call it as the deletion. Types of mutation on the DNA or DNA level mutation, इनको हम generally point mutation भी बोलते हैं. Why? Because they involve some specific region. जिसमें हमें पता होता है कि ये जो म्यूटेशन है न्यूक्लियोटाइड लेवल की, ये किस क्रोमोसोम के किस जीन के किस एक्सान और किस फिजिकल लोकेशन पे है, यानी एक स्पेसिफिक लोकेशन, इसकी फिजिकल लोकेशन पे ये न्यूक्लियोटाइड की चेंज होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द पॉइंट म्यूटेशन. और इसकी कई एक टाइप्स हैं: सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, इंसर्शन. So substitution means if the two nucleotides they replace each other. For example, C is replaced by G, G is replaced by A is replaced by T, and so on. Different combinations. So substitution means if one nucleotide is replaced by another nucleotide. अब इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं: ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्विंग द सब्स्टिट्यूशन, इनकी दो टाइप्स होती हैं: ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन. ट्रांजिशन, if the two nucleotides of the same nature they replace each other. For example, if purine is replaced by purine or pyrimidine is replaced by pyrimidine, जब purine purine को replace कर दे या pyrimidine pyrimidine को replace कर दे. For example, adenine है guanine से replace हो जाए, guanine है adenine से replace हो जाए, या साइटोसिन है थायमिन से replace हो जाए, या थायमिन है साइटोसिन से replace हो जाए. यानी सेम कैटेगरी के न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो सच अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन. और ट्रांसवर्जन, इफ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरामिडीन और पायरामिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन. फॉर एग्जांपल, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन, गुआनिन इज रिप्लेस्ड बाय द साइटोसिन एंड सो ऑन. यानी जब दो डिफरेंट कैटेगरीज के न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को रिप्लेस करें, वी कॉल इट एज द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन. इंसर्शन, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फ्यू न्यूक्लियोटाइड वो ऐड हो जाए नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड में, तो वी कॉल इट एज इंसर्शन. एंड डिलीशन, इफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर रिमूव्ड. अब है इनका इफेक्ट कि सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, प्रोटीन लेवल पे इनका क्या इफेक्ट होता है. तो प्रोटीन लेवल पे अगर सब्स्टिट्यूशन है, इफ वन न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड, तो उससे प्रोटीन लेवल पे क्या इफेक्ट हो सकता है. तो जनरली दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. एक है सिनोनिमस और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन सिनोनिमस. सिनोनिमस मीन्स ये सिनोनिम से वर्ड निकला है, विच मीन्स सेम, यानी बिफोर एंड आफ्टर चेंज द कोडान विच इज प्रोड्यूस्ड दे इनकोड द सेम अमाइनो एसिड. फॉर एग्जांपल, ये ल्यूसीन है, इसका ये कोडान है UUA, जिसमें this A is replaced by G, or this UUA codon is changed to UUG.
और इंटरेस्टिंगली दोनों कोडान सेम अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं, ल्यूसीन को. सो वी कॉल दिस चेंज इज एज सिनोनिमस. Similarly, threonine has ACU and this U is replaced by A. Now ACA, again both the codon they specify the same amino acid. We call it as either the silent mutation or as the synonymous substitution or synonymous mutation, synonyms. Next is non-synonymous. Non-synonymous means different. अब ये डिफरेंट अमाइनो एसिड भी इनकोड हो सकता है और ये स्टॉप कोडान भी इनकोड हो सकता है. फिर नॉन सिनोनिमस की दो टाइप्स हैं. अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड को एनकोड कर रहे हैं, सो वी कॉल इट एज द मिससेंस म्यूटेशन. लेकिन अगर स्टॉप कोडान को एनकोड यानी कोडिंग कोडान स्टॉप कोडान में कन्वर्ट हो रहा है, तो वी कॉल इट एज द नॉनसेंस म्यूटेशन. इफ अ कोडान specifying an amino acid change to another codon specifying another amino acid, we call this non-synonymous substitution as missense mutation. For example, UUA है, this A is replaced by C and this codon is changed to UUC. और ये कोडान अब डिफरेंट अमाइनो एसिड को इनकोड कर रहा है. UUA इनकोड कर रहा है ल्यूसीन को और UUC इनकोड कर रहा है फिनाइलएलेनिन को. सो दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज अ मिससेंस म्यूटेशन. और फॉर एग्जांपल एक कोडान है UGG, ये इनकोड करता है ट्रिप्टोफैन को. नाउ दिस G इज रिप्लेस्ड बाय A और अब ये बन गया है UGA व्हिच इज अ स्टॉप कोडान. सो सच अ काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज द नॉनसेंस म्यूटेशन. इसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है. फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट कोडान्स हैं और ये उनकी डिफरेंट इफेक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल इट्स द नॉर्मल कोडान UAC. नाउ दिस C इज रिप्लेस्ड बाय U. नाउ दिस कोडान UAC इज चेंज टू UAU और UAC एनकोड कर रहा है टायरोसिन को और UAU भी एनकोड कर रहा है टायरोसिन को. नाउ बोथ द कोडान बिफोर एंड आफ्टर चेंज इफ दे स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड वी कॉल इट एज द साइलेंट म्यूटेशन. Now, if this C is replaced by G, now this codon is changed from UAC to UAG, and UAG is a stop codon. So, if a coding codon is changed to a stop codon, such a kind of change is called as the nonsense mutation. Or third pick, if this U is replaced by C, so now the codon will become as CAC, or CAC is encoding the histidine amino acid. Now, if one codon changes to another codon and both specify different amino acid, for example, UAC encodes tyrosine and CAC encodes histidine, such a kind of change is called as the missense mutation. Next is the effect of the insertion deletion. So, effect of the insertion deletion is always frame shift. यानी जो reading frame है वो change हो जाए. Frame shift means change of the reading frame. यानी जो सेट ऑफ कोडिंग कोडान्स हैं वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को एनकोड करना शुरू कर दें. फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल कोडान के सेट हैं CAG, CCC, ACT और फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट कोडान डिफरेंट अमाइनो एसिड को एनकोड कर रहे हैं, ग्लूटामीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन. तो फॉर एग्जांपल अगर इन बिटवीन G एंड C देयर गेट इंसर्शन ऑफ द T यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाए. सो अब ये रीडिंग फ्रेम कुछ यूँ रीड होगा कि CAG, लेकिन जहाँ से इंसर्शन होगी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड कोडान कंसिडर होंगे TCC, CAC एंड सो ऑन. तो अब जहाँ से इंसर्शन होगी उससे पहले जितने भी कोडान्स होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामीन है, लेकिन इन पॉइंट ऑफ इंसर्शन से ऑनवर्ड जब कोडान चेंज हो जाएंगे तो डेफिनेटली अमाइनो एसिड भी वो डिफरेंट एनकोड करना शुरू कर देंगे. सच अ काइंड ऑफ चेंज इन द रीडिंग फ्रेम इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट. और सिमिलरली डिलीशन में भी सेम ही होगा. अच्छा, और ये इंसर्शन और डिलीशन जब तक फ्रेम शिफ्ट करेंगे जब तक कि ये मल्टीपल ऑफ 3 ना हो. लेकिन अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स के देयर गेट इंसर्शन ऑफ एन इंटैक्ट कोडान, एक कोई कोडान इनकॉर्पोरेट हो गया. सो जो 3 न्यूक्लियोटाइड या 6 न्यूक्लियोटाइड या 9 न्यूक्लियोटाइड एज फार एज के वो मल्टीपल ऑफ 3 हों, जस्ट वो एक एडिशनल डिफरेंट अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे, जबकि उससे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के जो रीडिंग फ्रेम होगा वो इंटैक्ट रहेगा. फॉर एग्जांपल 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए हैं तो अब ये 3 के 3 रीड होंगे एज अ सिंगल कोडान. तो CAG रीड होगा एज अ नॉर्मल कोडान ग्लूटामीन. TTT ये एक डिफरेंट कोडान का रीड होगा फिनाइलएलेनिन का. CCC प्रोलीन का. ACT थ्रियोनिन का. तो अगर इंसर्शन या डिलीशन ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं तो फिर ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इंटैक्ट रहेंगे. इन बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड एनकोड होंगे. लेकिन अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 1 है या 2 है,
तो फिर पॉइंट ऑफ इंसर्शन या पॉइंट ऑफ डिलीशन से ऑनवर्ड रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा।